بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. یا علیم علمنی یا علیم علمنی یا علیم علمنی. الحمدللہ آخری مرتبہ نحو کے بارے میں جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ منصرف غیر منصرف سے متعلق تھا. اسباب منع صرف کی تمام قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی. اب یہ اسباب منع صرف کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتانی ہے جو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور پھر اسے یاد کر لیں تاکہ غیر منصرف کے پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے. اب یہ جو ہمارے پاس غیر منصرف کے اسباب ہے یعنی اسباب منع صرف ہے یہ کل 9 قسمیں ہے. یہ کل 9 اقسام ہے. ٹھیک ہے، یہ اسباب کتنے ہیں؟ 9 ہے. اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. اسباب منع صرف کو کیا کریں گے؟ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. نمبر 1 اسباب قویہ، نمبر 2 اسباب مؤثرہ، اور نمبر 3 اسباب مطلقہ. اسباب منع صرف کو کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے؟ 3 حصوں میں. اسباب قویہ، اسباب مؤثرہ، اور نمبر 3 اسباب مطلقہ. نمبر 3 اسباب مطلقہ. ٹھیک ہے، جو پہلی قسم ہے اسباب قویہ یعنی وہ اسباب جو ایک سبب ہو لیکن 2 اسباب کے قائم مقام ہو. اسباب قویہ وہ اسباب جو ایک سبب ہو لیکن 2 سببوں کے قائم مقام ہو. اور یہ 3 اسباب ہیں. 3 اسباب ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک پایا جائے تو وہ غیر منصرف ہوگا کیونکہ وہ 2 سببوں کے قائم مقام ہیں. ایک تو یہاں پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے جمع، اس میں جمع منتہی الجموع، جمع منتہی الجموع، جمع میں پھر جب آپ جائیں گے جمع منتہی الجموع ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے تانیث بالف مقصورہ اور تانیث بالف ممدودہ. ٹھیک ہے، تانیث الف مقصورہ کے ساتھ ہو یا الف ممدودہ کے ساتھ ہو تو یہ بھی آنکھیں بند کر کے بتا دیں گے آپ کہ یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے. یہ کیا ہے؟ 2 سببوں کے قائم مقام ہے. جیسے حمراء بیضاء. ٹھیک ہے، دوسری قسم اسباب مؤثرہ یعنی اثر کرنے والے اسباب، یعنی اثر کرنے والے اسباب. یعنی وہ اسباب کہ اگر وہ موجود نہ ہو تو غیر منصرف کے جتنے بھی اسباب جمع ہو جائے کلمے کو غیر منصرف نہیں بنا سکتے. اسباب مؤثرہ سے مراد وہ اسباب ہے جن کی عدم موجودگی میں چاہے غیر منصرف کے جتنے بھی اسباب جمع ہو جائے وہ کلمے کو غیر منصرف نہیں بنا سکتے. یعنی وہ اسباب جن کے بغیر کلمہ غیر منصرف بن ہی نہیں سکتا، جن کے بغیر کلمہ غیر منصرف بن ہی نہیں سکتا
और वो दो सबब है, एक आलम है और एक वसफ है। एक आलम है और एक वसफ है। ये मारिफा से मुराद आलम है, ये तो पहले बता चुका हूँ। मारिफा से मुराद क्या है? आलम है। तो ये आलम और वसफ ऐसे दो असबाब है कि इनके अलावा अगर ये ना हो किसी कलमे में, जितने भी असबाब जमा हो जाए, जितने भी असबाब जमा हो जाए, तो कलमा गैर मुनसरिफ नहीं बन सकता जब तक ये आलम और वसफ में से कोई एक ना हो। आलम और वसफ के साथ कोई एक ना हो। ठीक है। और असबाब मुतलका यानी वो असबाब हैं जो आलम और वसफ के बगैर गैर मुनसरिफ के सबब होने में मोतबर नहीं है। असबाब मुतलका से मुराद जो आलम और वसफ के बगैर गैर मुनसरिफ का सबब होने में मोतबर नहीं है। ठीक है। और ये पांच असबाब है। ये क्या है? पांच असबाब है जो आलम और वसफ के अलावा है। जमा मुंतहल जुमू तानीस और आलम वसफ के अलावा बकिया पांच असबाब जो है वो असबाब मुतलका है। इसको क्या कहेंगे? असबाब मुतलका। ठीक है। अब ये आलम के साथ दूसरा कौन सा सबब हो सकता है? आलम के साथ दूसरा कौन सा सबब हो सकता है? इसी तरह वसफ के साथ दूसरा कौन सा सबब होता है? तो आलम के साथ छह चीज असबाब जमा हो सकते हैं। इनमें से कोई आलम के साथ मुअन्नस लफ्जी या मानवी, इनमें से कोई एक जमा हो सकता है, जैसे तलहा और जैनब। इसी तरह आलम के साथ मुरक्कब मनासरफ भी जमा हो सकता है, जैसे बाला बक्का, बाला बक्का। इसी तरह आलम के साथ अलिफ नून जायदतान वो भी जमा हो सकते हैं, जैसे इमरान। अलम भी है और आखिर में अलिफ नून जायदतान भी है। और इसी तरह आलम के साथ वजन फेल भी जमा हो सकता है, जैसे अशरफ नाम भी है और वजन फेल भी अफ़ाल के वजन पे। इसी तरह आलम के साथ आदल भी जमा हो सकता है, जैसे उमर, जैसे उमर। तो ये आलम के साथ इन छह असबाब में से कोई एक जमा होगा। और वसफ के साथ तीन चीजों में से कोई एक होगा, जैसे अलिफ नून जायदतान जो है जमा हो सकते हैं, सकरान मदहोश को बोलते हैं, सिफत है ये। अलिफ नून जायदतान भी है। इसी तरह वजन फेल भी जमा हो सकता है, जैसे अहमद, अहमर। अहमर ज्यादा सुर्ख को कहते हैं। वजन फेल भी है और वसफ भी है। आदल भी जमा हो सकता है, जैसे उखर। आदल भी जमा हो सकता है, जैसे उखर। तो खुलासा ये हुआ कि असबाब मनासरफ की तीन किस्में हैं। नंबर एक असबाब कविया, नंबर दो असबाब मुअस्सिरा, नंबर तीन असबाब मुतलका। असबाब कविया से मुराद वो असबाब है जो दो सबबों के कायम मुकाम हो। एक सबब हो लेकिन दो असबाब के कायम मुकाम हो। और ये तीन असबाब हैं। असबाब तो दो है लेकिन सूरतें तीन बनती है। नंबर एक जमा मुंतहल जुमू, नंबर दो तानीस बालिफ मकसूरा, नंबर तीन तानीस बालिफ ममदूदा। ये तानीस जो है ये एक ही किस्म शुमार की जाती है, तो उसके आगे दो किस्में हो गए। और असबाब मुअस्सिरा जिनके ना होने की वजह से, यानी वो असबाब जिनकी आदम मौजूदगी में गैर मुनसरिफ के चाहे जितने भी असबाब जमा हो जाए कलमे को गैर मुनसरिफ नहीं बना सकते, कलमे को गैर मुनसरिफ नहीं बना सकते। और वो दो असबाब हैं, एक आलम है और एक वसफ है। एक क्या है? आलम है और एक वसफ है। इसी तरह असबाब मुतलका वो असबाब है जो इन पांच असबाब के अलावा है।
جو ان 5 اسباب کے علاوہ ہے وہ کیا ہے؟ اسباب مطلقہ. اسباب مطلقہ وہ اسباب ہیں جو ان 5 اسباب کے علاوہ ہیں، اور یہ وہ اسباب ہیں جو عالم اور وصف کے بغیر غیر منصرف ہونے کے سبب کے لیے معتبر نہیں ہے. اس کے بغیر یہ کیا ہے؟ معتبر نہیں ہے. پھر آگے میں نے بتایا کہ عالم کے ساتھ دوسرا سبب جو ہے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا، مؤنث لفظی یا معنوی ہوگا، عجمہ ہوگا، مرکب منع صرف ہوگا، الف نون زائدتان ہوگا، وزن فعل ہوگا اور عدل ہوگا. اسی طرح وصف کے ساتھ دوسرا سبب جو ہے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا، الف نون زائدتان ہوگا یا وزن فعل ہوگا یا عدل ہوگا. یہ غیر منصرف کا سبق تقریباً ہمارا مکمل ہو گیا. غیر منصرف کا سبق جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اس کو آپ سب صحیح طریقے سے یاد کر لیجئے گا. ایک تو غیر منصرف کے اسباب کو صحیح طریقے سے یاد کریں، غیر منصرف کے اسباب کو صحیح طریقے سے یاد کریں، اور پھر آج جو باتیں بتائی ہے یہ بھی یاد کر لیں. انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. آپ کے لیے مسائل کو غیر منصرف کے اسباب کو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی اور پہچاننے میں بھی پھر مشکل پیش نہیں آئے گی. اگر صحیح طریقے سے یاد نہیں کریں گی تو پھر پہچاننے میں مشکل پیش آئے گی. ٹھیک ہے؟ جی آگے چلیں. اچھا، اگر آپ کو یاد ہو جب ہم نے سبق شروع کیا تھا تو اسم کی مختلف تقسیمات بتائی تھی، باعتبار تعین و عدم تعین، باعتبار جنس، باعتبار تعداد حروف اور باعتبار اعراب. باعتبار اعراب کی ہم نے 2 قسمیں بتائی تھی، معرب اور مبنی. ٹھیک ہے؟ باعتبار اعراب ہم نے کتنے قسمیں بتائی تھی؟ 2 قسمیں بتائی تھی، معرب اور مبنی. معرب کے بارے میں تقریباً اکثریت جو چیزیں تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہے. اب مبنی کے بارے میں پڑھیں گے. اب کیا کریں گے؟ مبنی کے بارے میں پڑھیں گے. تو یہاں پہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ مبنی کہتے کسے ہے. مبنی کہتے کسے ہیں؟ مبنی کہتے کسے ہیں؟ وہ لفظ ہے جس کا آخر تبدیل نہ ہوتا ہو. آسان تعریف یہ ہے، جس کا آخر تبدیل نہ ہوتا ہو. ایک ہی قسم کا اعراب ہوگا، تبدیلی اس میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے؟ صحیح طریقے سے اصطلاحی تعریف جب کریں گے کہ وہ لفظ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے. جیسے جاء ہؤلاء، ہؤلاء مبنی ہے، فاعل کی جگہ واقع ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ پیش ہونا چاہیے تھا جاء ہؤلاء. اسی طرح رأیت ہؤلاء، ہؤلاء مفعول کی جگہ ہے تو یہاں پہ نصب ہونا چاہیے تھا، زبر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہی ہؤلاء اپنی حالت میں برقرار ہے. اسی طرح مررت بہؤلاء، یہاں پہ بھی وہی اپنی حالت میں برقرار ہے. عامل تبدیل ہو گیا، رفع دینے والا عامل بھی آ گیا، تب بھی
हाउलाई अपनी हालत पे बरकरार रहा। नसब देने वाला आमिल भी आया, तब भी हाउलाई अपनी हालत पे बरकरार रहा। इसी तरह जर देने वाला आमिल आया, तब भी हाउलाई अपनी हालत पे बरकरार रहा। अपनी हालत पे क्या रहा? बरकरार रहा। उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, ये है मबनी की तारीफ। ये क्या है? मबनी की तारीफ है। तो मबनी की फिर आगे दो किस्में हैं। मबनी की क्या है? दो किस्में हैं, मबनीयुल असल और एक मबनीयुल असल के मुशाबे। मुशाबे मबनीयुल असल, मुशाबे मबनीयुल असल। मबनी की फिर कितने किस्में हैं? दो किस्में हैं, मबनीयुल असल और एक मुशाबे मबनीयुल असल। यहां तक बात समझ आ गई? मबनी की फिर दो किस्में बनती है, मबनीयुल असल और मबनीउल असल के मुशाबे। तो मबनीउल असल वो मबनी है जो अपने असल के एतबार से मबनी हो, जो अपने असल के एतबार से क्या हो? मबनी हो। और मबनीउल असल तीन चीजें हैं। मबनीउल असल कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं। नंबर एक फेल माजी, नंबर दो अमर हाजिर, और नंबर तीन हुरूफ। नंबर तीन हुरूफ। मबनीउल असल कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं। नंबर एक फेल माजी, नंबर दो अमर हाजिर, नंबर तीन हुरूफ। और मुशाबे मबनीउल असल जो है, ये जरा समझें। ये इसमें मबनी और मुशाबे मबनीउल असल ये एक ही तरह है। इसको आप इसमें मबनी कहें या मुशाबे मबनीउल असल कहें, ये दोनों एक जैसा है। ठीक है, यानी जो मबनीउल असल के मुशाबे हो, जो क्या हो? मबनीउल असल के मुशाबे हो, अपने असल के एतबार से मबनी ना हो, मबनी उल असल के साथ मुशाबहत की वजह से वो मबनी हो गया हो। ठीक है, जैसे हुआ जमीर है, हुआ जमीर है, ये ना तो फेल माजी है, ना अमर हाजिर है, ना हर्फ है। तो ये जो मबनी हुआ है, तो ये मबनी उल असल के मुशाबे हो के मबनी बन चुका है। लफ्ज मिन हर्फ है, तो ये हुआ जमीर जो है मुशाबे हुआ, हर्फ के साथ मुशाबे हुआ हरूफ की तादाद के एतबार से। ठीक है, तो इस वजह से ये मबनी हुआ, इस वजह से ये क्या हुआ? मबनी हो गया। अभी मुशाबहत की मुख्तलिफ सूरतें होती है, मुशाबहत की मुख्तलिफ सूरतें होती है। कभी लफ्जी मुशाबहत होती है,
کبھی لفظی مشابہت ہوتی ہے اور کبھی معنوی مشابہت ہوتی ہے، اور اسی طرح کبھی احتیاجی مشابہت ہوتی ہے، کبھی تضمنی مشابہت ہوتی ہے۔ لفظی مشابہت سے مراد یہ کہ لفظوں میں مشابہت ہو، کیا ہو؟ لفظوں میں مشابہت ہو، کہ کسی اسم میں 3 سے کم حرف ہو۔ لفظی مشابہت سے مراد کسی اسم میں 3 سے کم حرف ہو، جیسے حرف میں 3 سے کم حروف ہوتے ہیں۔ حرف میں کتنے ہوتے ہیں؟ 3 سے کم حروف ہوتے ہیں۔ جیسے ضربت میں تا ضمیر ہے، ضربنا میں نا ضمیر، یہ حروف جارہ با اور من کے مشابہ ہیں۔ اور معنوی مشابہت سے مراد یہ کہ معنی میں مشابہت ہو، کہ کوئی اسم میں کسی اسم میں وہی معنی پائے جائیں جو مبنی الاصل میں بھی ہو، جو مبنی الاصل میں بھی ہو، جیسے آئینہ۔ آئینہ یہ استفہام ہے، اس میں استفہام ہے جو حمزہ حرف استفہام کے مشابہ ہیں، جو حمزہ حرف استفہام کے مشابہ ہیں۔ نمبر 3، احتیاجی مشابہت۔ احتیاجی احتیاج سے ہے محتاج ہونا، ضرورت مند ہونا۔ مطلب یہ کہ کوئی اسم اپنے معنی پہ دلالت کرنے کے لیے حرف کی طرح دوسرے کا محتاج ہو۔ کوئی اسم اپنے معنی پہ دلالت کرنے کے لیے حرف کی طرح دوسرے اسم کا محتاج ہو، جیسے اس میں موصول ہے، یہ صلہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اس میں موصول حرف کی طرح صلہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اس طرح حرف محتاج ہوتا ہے، اپنا معنی خود نہیں بتا سکتا، اسی طرح اس میں موصول بھی اپنا معنی خود نہیں بتا سکتا، تو یہ محتاج کس کا ہوتا ہے؟ صلہ کا ہوتا ہے، تو یہ حرف کی طرح ہو گیا، اس وجہ سے یہ بھی احتیاجی مشابہت ہے۔ تضمنی مشابہت۔ تضمنی مشابہت، تضمن کا معنی ہوتا ہے شامل ہونا، متضمن یعنی مشتمل ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اسم جو حرف کو متضمن ہو، یعنی جس میں حرف موجود ہو، وہ اسم جس میں حرف موجود ہو جو حرف کو متضمن ہو، جیسے احد عشر، اصل میں احد و عشرون تھا، احد و عشرون تھا، یہاں پہ واو جو ہے موجود ہے، یہ کیا ہے؟ واو موجود ہے۔ تو یہ مشابہت کی مختلف صورتیں ہیں جو آپ کو بتا دی، مشابہت کی مختلف صورتیں ہیں جو آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے؟ پھر آگے یہ یاد رکھیے کہ مشابہ مبنی الاصل 2 چیزیں ہیں۔ مشابہ مبنی الاصل کیا ہے؟ تقریباً 2 چیزیں ہیں۔ ایک جو ہے اس میں غیر متمکن، اس میں غیر متمکن، اور دوسرا فعل مضارع۔ دوسرا کیا ہے؟ فعل مضارع۔ فعل مضارع کے ساتھ جب نون جمع ہو یا نون تاکید ہو، فعل مضارع کے ساتھ جب نون جمع ہو یا نون تاکید ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو، فعل مضارع میں 2 صیغے ہمارے پاس ایسے ہوا کرتے تھے، 2 کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے، ہمیشہ اپنی حالت پہ برقرار رہتے تھے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ تو وہ کیا ہے؟ مبنی ہے، اس وجہ سے وہ تبدیل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ مبنی تھے۔ وہ کیا تھے؟ مبنی تھے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی سب کو؟
याद रखिए कि कुछ चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, मबनी की कुछ चीजों को हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं तफसील के साथ, तो उनके सिर्फ नाम हम लेंगे, बाकी तफसीलात जो है वो पहले ही हम पढ़ चुके हैं। इसमें गैर मुतमक्किन के बारे में मैंने आपको बताया कि वो इसम है जो मबनी उल असल के साथ मुशाबे हो, जैसे हुआ ज़मीर ये मबनी उल असल के मुशाबे है, यानी हर्फ के साथ तादाद में मुशाबहत रखता है। तो इसमें गैर मुतमक्किन की मुख्तलिफ किस्में हैं, इसमें गैर मुतमक्किन की मुख्तलिफ किस्में हैं। मुज़मरात यानी ज़माइर जो है, ये मारिफा में मुज़मरात की बहस हम पढ़ चुके हैं, 2-3 जगह हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ज़मीर की हमने 3 किस्में की थी, मरफू, मनसूब और मजरूर, ठीक है। फिर मरफू की 2 किस्में, मुत्तसिल, मुनफसिल, मनसूब की भी 2 किस्में, मुत्तसिल और मुनफसिल, ठीक है। तो इस तरह कुल 5 किस्में बनी थी। इसी तरह अस्माए इशारात, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अस्माए मौसूलात, अस्माए मौसूलात इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अस्माए अफ़आल ये नई चीज़ है, इसमें फेल भी इसको कहते हैं, अस्माए अफ़आल भी कहते हैं। इसी तरह अस्माए अस्वात, अस्माए अस्वात, और इसी तरह अस्माए ज़ुरूफ और अस्माए किनायात और मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब बिनाई, ये सब के सब जो है ये इसमें गैर मुतमक्किन की किस्में हैं। इसमें गैर मुतमक्किन की क्या है, किस्में हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो अस्माए अफ़आल है, अस्माए अफ़आल है। तो अस्माए अफ़आल से मुराद क्या है, वो इसम है जो फ़िल पे दलालत करे, वो इसम है जो किस पे दलालत करे, फ़िल पे दलालत करे, लेकिन फ़िल की अलामत कबूल ना करे। तो वो अस्मा जो फ़िल के माना में हो, ठीक है। फिर अस्माए अफ़आल की 3 किस्में हैं। अस्माए अफ़आल की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं। अस्माए अफ़आल बमाना फ़िल माजी, अस्माए अफ़आल बमाना फ़िल माजी, यानी फ़िल माजी के माना में बाज़ अफ़आल होंगे। अस्माए अफ़आल बमाना फ़िल मुज़ारी, यानी वो अस्माए अफ़आल जो फ़िल मुज़ारी के माना में हो। इसी तरह अस्माए अफ़आल बेमाना अम्र हाजिर, यानी ऐसे अस्माए अफ़आल जो अम्र हाजिर के माना में हो। तो अस्माए अफ़आल बेमाना फ़िल माजी जो है ये तकरीबन चंद अस्मा है। मसलन शत्ताना, क्या लफ्ज है, शत्ताना, शत्ताना बिमाना इफ्तरका, बिमाना इफ्तरका। इसी तरह सरआना, शत्ताना का माना इफ्तरका जुदा होने के माना में है, किसके माना में, जुदा होना। सरआना बिमाना सरा, तेज होने के माना में, तेज होना, जल्दी करना। हैहाता बिमाना बाउदा, बाउदा का बेमाना में दूर होने के माना में, किस के माना में है, दूर होने के माना में है। इसी तरह अस्मा अफ़आल जो फिल मुजारी में हो, जैसे उफ़िन, उफ़िन का माना होता है मैं बराबर समझ रहा हूँ। आहिन, आहिन मुझे तकलीफ हो रही, आहिन का माना क्या होता है कि मुझे तकलीफ हो रही है।
اور قطु काफी है, قطु किसके माना में है? काफी है। बखी, बखी का माना होता है मुझे अच्छा लगा है। बखी का माना क्या है? मुझे अच्छा लगा है। तो ये किसके माना में है? फिल मुजारी के माना में है। अमर हाजिर के माना में जो अस्मा है, जैसे रुवैदा, रुवैदा अमहिल के माना में है। अमहिल यानी मोहलत दो। इसी तरह बलहा, बलहा बिमाना दा, बलहा का माना होता है छोड़ने के माना में, दा के माना में छोड़ना। इसी तरह हय्यहल बेमाना ईती, लेकर आना। हय्यहल का माना होता है लेके आ जाओ। इसी तरह हलुम्मा बेमाना अहजिर, हाजिर करो। दूनका बेमाना खुद, पकड़ लो। बेमाना क्या? खुद यानी पकड़ लो। इसी तरह आमीन, हम पढ़ते हैं ना नमाज में आमीन या दुआ के बाद, ये बेमाना इस्तजिब है। इस्तजिब यानी कबूल करो। तो ये मुख्तलिफ अस्मा है जो फेल के माना में है। मुख्तलिफ अस्मा है जो फेल के माना में है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, अस्मा अफ़ाल की समझ आ गई होगी। उमूमन इसमें से कुछ अस्मा इस्तेमाल भी होते हैं, कुछ अस्मा क्या होते हैं? इस्तेमाल भी होते हैं। ठीक है, तो अस्मा अफ़ाल वो अस्मा है जो फेल पे दलालत करते हैं, यानी माना फेल के देते हैं लेकिन फेल होते नहीं है। और फिर ये तीन किस्मों पे मुश्तमिल है, कुछ फेल माजी के माना में है, कुछ फेल मुजारी के माना में, और कुछ अमर हाजिर के माना में है, जो आपको बता दिए हैं, जो आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसी तरह हमने पढ़ा अस्माए अस्वात। अस्माए अस्वात वो इसम है जिसके साथ किसी जानवर को आवाज दी जाए। वो इसम जिसके साथ किसी जानवर को आवाज दी जाए, या बेजान किसी बेजान चीज की नकल करता है, किसी जानदार या बेजान चीज की आवाज की नकल की जाए। तो दो चीजें हो गई, या तो नकल की जाए किसी जानदार या बेजान चीज की, या जिसके साथ किसी जानवर को आवाज दी जाए। जैसे नख नख, ऊंट के लिए जब बोलते हैं, ऊंट को जब हम बिठाते हैं नखे नखे बोलते हैं। इसी तरह गाक गाक जो है, ये कवि की आवाज नकल करने के लिए बोला जाता है, कवि की आवाज को नकल करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सबक काफी है, फिर कल इंशाल्लाह आगे पढ़ लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो आपने ये करना है कि मबनी की तारीफ और मबनी की अक़साम, और फिर आगे गैर मुतमक्किन के अक़साम के नाम, और अभी जो हमने सबक पढ़ा इसको आप याद कर लें, इसको आप क्या कर लें? याद कर लें। कल इंशाल्लाह मबनी की सारी बहस मुकम्मल हो जाएगी, मबनी की बहस भी मुकम्मल हो जाएगी।